Okay, dear students, Assalamu alaikum. Today we are starting the new topic, that is the articles. Okay, if you recall your memories, in the very first lecture, we discussed the parts of speech in detail. Okay, so today, so that ninth number, the last parts of speech, that was the articles. And today we are discussing that how the articles are used before a noun. Okay, before we start our lecture, let me repeat that I taught you that there are 9 parts of speech, starting with noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, and articles. I discussed that with noun, before noun we place articles, and before noun we also place preposition, and before noun we place adjective, and in place of noun we use pronoun. So with noun, almost 50% parts of speech are attached, or directly they have connection with a noun. Okay, if a noun is not there, we can't use articles. Now the question arises that pronoun is the other name of noun. In place of noun we use pronoun. So can we use articles with pronoun? No. Articles are not used before a pronoun. We can say a book, because book is a name and that is noun. But we can't say a she, a he. No, we can't use. Now see, we have got articles, and articles are always placed before noun. A, an, or the. These articles are always placed before a noun. Remember, if you have got a pronoun before pronoun, now is used, now an is used, and also now the is used. So remember, no doubt, pro means second or other. Other name of noun is called pronoun. Pronoun is the word which comes in place of a noun. If I say Ali attends the class, in the second sentence if I say he attends the class, so the sentence is same. First one is Ali attends the class, second one is he attends the class. So attends the class in both his sentences is same, but the changing is of subject. In the first one we have got Ali, that is the noun, and in the second one we have got he, that is the pronoun. So pronoun is the word which replaces noun, which comes in place of noun. If pronoun is there, noun will not be there. If noun is there, pronoun will not be there. Noun pronoun दोनों बगैर गैप के इस्तेमाल नहीं होंगे. अगर दोनों साथ इस्तेमाल करते हैं तो there will be the gap, कामा आएगा, या कंजक्शन एड बट और कंजक्शन के बगैर या कामा के बगैर हम नाउन प्रोनाउन एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. नाउन प्रोनाउन एक साथ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नाउन के साथ एडजेक्टिव बगैर गैप के आएगा. गुड बॉय, यानी बॉय के साथ गुड इस्तेमाल हुआ, कोई बीच में कामा. गुड और बॉय के बीच में ना तो कोई कामा है और ना कंजक्शन है. ओके, लाइकवाइज वी से इन द क्लास, हमने प्रीपोजिशन को इस्तेमाल किया क्लास के साथ, कोई बीच में गैप वगैरह नहीं है. लाइकवाइज अ बुक, हमने आर्टिकल को नाउन के साथ इस्तेमाल किया, कोई गैप नहीं है. तो नाउन से पहले हम 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1 आर्टिकल्स, नंबर 2 प्रीपोजिशन, नंबर 3 एडजेक्टिव्स. लेकिन प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, सो आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रोनाउन, इनके साथ इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा. Now remember, we have got 2 types of nouns. One is called countable, other is called uncountable. The noun which can be counted as 1, 2, 3, 4, 5, that is called countable. And the noun which cannot be counted as 1, 2, 3, 4, 5, that is called uncountable. For example, we can say 1 book, 2 books, 1 city, 2 cities, 1 country, 2 countries. But can we say 1 Karachi, 2 Karachis? No. 1 Pakistan, 2 Pakistans? No. 1 water, 2 waters? No. 1 milk, 2 milks? No. 1 sugar, 2 sugars? No. So that is, we have got the noun which can be counted, that is called countable, and the noun which cannot be counted, that is called uncountable noun. Okay, remember, so we have got countable and uncountable noun. Remember, this article is not used with proper noun.
A proper noun is there, no article. A and the are not used. For example, we have got Karachi, we have got Ahmad. So we can't say yeah, and never. So remember that nouns with a proper noun we can't use articles. Articles are used with uncountable noun. Sorry, with countable noun, the nouns which can be counted. So with these nouns we can use articles. Now remember, see, we have got this or we have got this n. Means one, n means also one. One and also one. So these are placed before a singular noun. This n is also used before a singular noun. Remember, we have got article A is placed before a common noun, that is singular. N is also placed before a common noun, that is singular. Remember, which are the singular nouns? Singular nouns are those which do not end in s, es, ies, ves, apostrophe s, ses or xes. Okay, remember, if we have got apostrophe s, so remember, अगर आपके पास सिंगुलर नाउन हो तो उसकी पहचान क्या है? सिंगुलर नाउन के आखिर में एस, ई एस, आई एस, वी एस या अपॉस्ट्रॉफी एस या एस सी एस या एक्स एस नहीं आएगा. These are called the singular nouns. For example, we have got this fan. Fan is the singular क्योंकि इसके आखिर में ना तो एस है, ई एस, आई एस, वी एस या अपॉस्ट्रॉफी एस या एस सी एस, यहाँ एक्स सी एस नहीं. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंगुलर. जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ अ या एन इस्तेमाल करेंगे. बट विथ प्लूरल नाउन्स ए और एन आर नॉट यूज्ड. रिमेंबर, ये जो ए या एन है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए या एन नहीं होगा. अगर आपके पास है ए एंड द नाउन इज प्लूरल, वी कांट यूज. इफ वी हैव एन, द नाउन इज प्लूरल, वी कैन नॉट यूज. सो रिमेंबर, we use a with singular noun, we use n with singular noun. और singular nouns वो हैं जिसकी आखिर में यानी do not end s, es, is, vs या apostrophe s या scs या xx noun. Okay, so these are called singular nouns. Now see, we have got this n and we have got this a. A is called with singular noun, n is also placed before a single noun. But remember, if the singular noun's initial sound is a vowel sound, then we place n, and if a singular noun produces its initial sound is a consonant sound, we place a. If a singular noun's initial यानी शुरुआत वाला साउंड इज अ वावल साउंड, वी प्लेस आर्टिकल एन बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल,
See, if a singular noun's initial sound is a vowel sound, we place article n before it. But this is called the vowel sound. Which is the vowel sound? This is called vowel sound, or this is called a, o, a. These are called the vowel sounds. If you have got a singular noun and singular noun's initial sound is a vowel sound, we place n. How? For example, और which is the vowel sound? Vowel sound क्या है? This is a vowel sound. और अगर अपनी उर्दू लैंग्वेज में करेंगे या सिंधी में तो this is a, o, a. These are called vowel sound. How? For example, listen. For example, we have got this apple. बाबा देखिए ये एप्पल है, अगर हम इसका साउंड लिखेंगे या पढ़ेंगे तो दिस इज एप्पल. ये देखें ये अलिफ आ गया. इस एप्पल का शुरुआत वाला साउंड अलिफ साउंड है, तो दिस इज अ साउंड. सो दिस इज कॉल्ड नंबर 1. लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि इस एप्पल, इधर दिस एप्पल इज सिंगुलर और प्लुरल. एप्पल इज सिंगुलर. क्यों सिंगुलर है? क्योंकि इस एप्पल के आखिर में ना तो एस है, ना ईएस है, ना आईएसवीएस या अपोस्ट्रोफी या एसीएस या एक्सीएस नहीं. एप्पल के आखिर में इनमें से कोई भी नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर. ये जब सिंगुलर है तो हम ए या एन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन हम देखेंगे कि इसका शुरुआत वाला आवाज वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड. हमने देखा कि इसका शुरुआत वाला वावल साउंड है. एप्पल अ आ गया, तो दैट्स व्हाई हम इस्तेमाल करेंगे एन एप्पल. ओके. इफ a singular noun produces its initial sound is a consonant, means not a vowel sound, we place article a before it. How? For example, we have got this book. सबसे पहले हम देखेंगे whether book is singular or plural. Book is called singular क्योंकि book के आखिर में ना तो s है, es, is या vs या apostrophe s या s नहीं है, सिवाय कुछ सब्जेक्ट्स के नेम के, जैसे फिजिक्स s आखिर में आता है लेकिन that is called singular. मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो सिंगुलर, लेकिन उनके आखिर में एस आ रहा है, लेकिन एस आने से वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है. क्योंकि ये सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम्स हैं या डिजीज के नेम्स, एस आएगा फिर भी वो सिंगुलर कहलाएंगे. और दूसरी बात कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं या डिजीज हैं, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं है. आगे चल के मैं आपको बताता हूँ. बाबा सबसे पहले बताएं कि बुक इज सिंगुलर. इज इट सिंगुलर? यस, इट इज सिंगुलर बिकॉज इट डज नॉट एंड इन एस, ईएस, आईएस, वीएस और अपोस्ट्रोफी एस इसके आखिर में नहीं है. फिर हम देखेंगे कि इसका इनिशियल साउंड क्या वावल है या कॉन्सोनेंट है. बाबा इसका इनिशियल साउंड ब यानी बुक. दिस ये है बुक इन उर्दू एंड दिस इज बुक इन सिंधी. नाउ रिमेंबर, इसका शुरुआत वाला आवाज ब का आवाज है, अ का आवाज नहीं है. सिंगुलर तो है लेकिन इसका शुरुआत वाला आवाज इसका अ का नहीं है, इसका ब का है यानी कॉन्सोनेंट का है, वावल का नहीं है, तो हम इसमें अ बुक लगाएंगे. Okay, so we discussed that articles are placed before a noun. Article a and n, the village are placed before a noun. If noun is singular, we place either a or n. Okay, we also used the before article the before a singular or before a plural noun. But remember, we are discussing the difference between a and n. Remember, कभी भी plural के साथ a या n नहीं आएगा. नंबर 2, जब ये सिंगुलर होगा तो a भी आएगा, n भी आएगा. लेकिन फिर देखेंगे कि सिंगुलर का शुरुआत वाला साउंड क्या है. अगर सिंगुलर का शुरुआत वाला साउंड अ साउंड है, अलिफ का साउंड है यानी वावल साउंड है, तो उस सिंगुलर से पहले एन लगाएंगे. और अगर सिंगुलर का शुरुआत वाला आवाज अ का नहीं है, कॉन्सोनेंट का है, तो फिर हम लगाएंगे अ. नाउ लिसन बाबा, सी
नाउ सम MCQs, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है MCQ, ओके, नंबर 2 we have got M&A, and number 3 we have got university, and number 4 we have got umbrella, number 5 we have got elbows, number 6 we have got books. Okay, so we have MCQ. A में आएगा, क्या इसमें A लगेगा या N लगेगा या कोई भी नहीं लगेगा? इसमें भी A में क्या इसमें N लगेगा, B में A लगेगा एंड C में बोथ लगेगा. लाइकवाइज 3 में इसका A ऑप्शन है कि इसमें N लगेगा, B A लगेगा या C नन. नंबर 5 इसमें A लगेगा या N या नन. नंबर 5 इसमें A में N लगेगा, B में A लगेगा और C में बोथ. नंबर 6 A में A लगेगा, B में N और C में none. Now see, I have written some MCQs. These are the 6 MCQs. Number 1 MCQ. बताए बाबा, इस MCQ में A लगेगा या N लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नाउ रिमेंबर, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये MCQ, बाबा इसके साउंड के ऊपर जाएंगे. सबसे पहले देखना ये क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है. ये सिंगुलर है क्योंकि MCQ 1 MCQ. रिमेंबर, ये देखें, ये शायद पॉइंट आपको मैंने नहीं सिखाई. अगर आपके पास है एब्रीविएशन, अगर आपके पास है नंबर, और नंबर 3 अगर आपके पास है लेटर, यानी A B, these are the letters. नंबर यानी we have got 2 3 4. Abbreviation, for example we have got MCQ, these are the abbreviation. बाबा देखिए, abbreviations are those which can be pronounced separately. These are called abbreviations. Now remember, देखिए बाबा, अगर आपके पास एब्रीविएशन है, अगर आपके पास नंबर है, अगर आपके पास लेटर है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? इनका प्लूरल बनेगा इन सब का अपॉस्ट्रॉफी एस से. रिमेंबर, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि अपॉस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड टू शो पोजेशन. फॉर एग्जांपल हम कहते थे, जैसे ये देखें, वी हैव गॉट बॉय बुक. अगर मैं लिखना चाहूं बुक ऑफ बॉय, तो हम लिखेंगे बॉयस बुक, मीन्स बुक ऑफ अ बॉय. यानी इसने ऑफ की मीनिंग दी, यानी इसके पोजेशन की मीनिंग दी. लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अगर पहले से ही स का साउंड मौजूद है, सी या एस मौजूद है, जैसे हमारे पास है प्रिंस, ये हमने सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं की थी. ये हमने कहा था कि आखिर में सी ई या एस ए सी यानी स का साउंड आ जाए तो प्रिंस ड्रेस, क्या स पहले ही मौजूद है, तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स पहले ही मौजूद है, फिर दूसरा स का जरूरत नहीं है. मीनिंग वही होगी इसकी, इस अपॉस्ट्रॉफी की मीनिंग भी ऑफ है. इसका मकसद है ड्रेस ऑफ अ बॉय, प्रिंस, ड्रेस ऑफ अ प्रिंस.
ओके लिसन टू मी, ये हमने इसका इस्तेमाल सीखा था कि इसकी मीनिंग होगी ऑफ। जब ये ऑफ की मीनिंग देगा तो जब आप देखेंगे कि आखिर में जिस नाउन के साथ ये लग रहा है उस नाउन के आखिर में अगर CE या S या AC आ जाए तो अकेले अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, दूसरी एस नहीं लगाएंगे, मीनिंग वही ऑफ वाली। और अगर आखिर में कोई स या CES नहीं है, जैसे आखिर में Y है, तो हम अपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे, S भी। अगर अभी इसका दूसरा यूज है कि जब भी आपके पास नंबर हो, जब भी आपके पास एब्रीविएशन हो, नंबर हो या लेटर, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि प्लूरल बनाने का तरीका यह है कि हम S लगाते हैं, ES, IES, VES। ओके, अगर SIS है तो I हटा के SES, XIS है तो XES। एक तरीका यह भी है कि अगर आपके पास एब्रीविएशन आ जाए, अगर आपके पास नंबर आ जाए, अगर आपके पास लेटर आ जाए, तो उसका प्लूरल कैसे करें। उसका प्लूरल करेंगे अपॉस्ट्रॉफी S से। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास है दिस इज 1 MCQ, लेकिन हम कहें 2 MCQ नहीं होगा। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं वी से 1 बुक, लेकिन 2 बुक नहीं, 2 बुक्स। तो जब नंबर बढ़ेगा तो ये नाउन जो होगा एक से ज्यादा, ये नाउन प्लूरल होगा। 2 लगाएंगे तो बुक नहीं बुक्स, फैन नहीं फैंस, बोर्ड नहीं बोर्ड्स, लाइफ नहीं लाइव्स, 1 लाइफ 2 लाइव्स। तो यानी 2 का नंबर जब भी आएगा तो प्लूरल नाउन के साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ नहीं। 1 से ऊपर जितना भी नंबर होगा उसके साथ जो नाउन लगेगा वो प्लूरल होगा। और मैं बता चुका हूं कि दिस 2 इज कॉल्ड एडजेक्टिव नंबर, क्योंकि बुक और 2 के बीच में कोई गैप नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ऐड करता है नाउन में। तो ये क्या ऐड कर रहा है, इसका नंबर। 2 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, 2 बुक्स। ओके, तो जब ये 2 3 4 5 6 होगा तो ये नाउन जो होगा वो दैट विल बी प्लूरल। ओके, नाउ सी, जब भी आपके पास 1 MCQ तो 2 MCQ नहीं। अभी MCQ यानी जब 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो दिस मस्ट बी सिंगुलर नाउन। जब 2 लगाएंगे तो दिस मस्ट बी प्लूरल नाउन। तो इस MCQ, बाबा MCQ इज कॉल्ड एब्रीविएशन। जब हम इनिशियल्स को यानी लेटर्स जो शुरुआत वाले, ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है। ये M किसका इनिशियल है, मल्टीपल का। दिस इनिशियल किसका, मल्टीपल। C किसका, चॉइस। Q किसका, क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस मल्टीपल का M लिया गया, चॉइस का C और क्वेश्चन का Q, तो ये बन गया MCQ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स के हमने इनिशियल लिए, यानी शुरुआत वाला लेटर। इसका शुरुआत वाला लेटर ये है, इसका शुरुआत वाला ये है, इसका शुरुआत वाला ये है। तो दीज आर कॉल्ड द इनिशियल्स। ओके, इसको इनिशियल्स कहें और एब्रीविएशन कहें, बोथ आर सेम। एब्रीविएशन मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म, मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म M है, क्वेश्चन का Q, चॉइस का C। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, रिमेंबर, एब्रीविएशन उसको कहते हैं जो हम इनिशियल्स को अलग अलग करके पढ़ें। हम कैसे पढ़ रहे हैं, MCQ, दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन। लेकिन रिमेंबर, अगर हम एब्रीविएशन नहीं, इन इनिशियल्स को अलग अलग नहीं पढ़ें, इनको मिला के पढ़ें, तो दीज आर कॉल्ड एक्रोनिम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दिस इज यूनिसेफ। इसको हम नहीं पढ़ते UNICEF, इसको ऐसे नहीं पढ़ते। अगर इसको हम ऐसे पढ़ते UNICEF तो दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन, क्योंकि हम इसको अलग अलग कर पाए। लेकिन अगर इसको एज अ वर्ड पढ़े, इनिशियल्स आर प्रोनाउंस एज अ वर्ड, एज अ सिंगल वर्ड, इट इज कॉल्ड एक्रोनिम। रिमेंबर, UNICEF is a word, WAPDA is the word, HESCO is the word. WAPDA has no meaning. WAPDA is the word formed from initials. Water लिया गया, W लिया गया वाटर से। अगर हम वापडा का लें तो वापडा का फुल फॉर्म होगा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वाटर से W लिया गया, एंड से A, डेवलपमेंट से D, अथॉरिटी से A,
तो ये हो गया वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पावर से पी। तो इनिशियल से अगर एक वर्ड बन जाए उसको एक्रोनिम कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्रोनिम। एक्रोनिम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, रिमेंबर। लेकिन इनिशियल्स आर प्रोनाउंस सेपरेटली तो उसको एब्रिविएशन पढ़ेंगे। हम इसको मिस्क नहीं पढ़ते, जैसे इसको यूनिसेफ पढ़ा, हम इसको पढ़ते हैं MCQ। तो मैंने बताया था कि अगर 2 3 4 5 6 7 ये नंबर 2 और 2 से ज्यादा होगा, यानी 1 से ज्यादा जो भी नंबर लगेगा उसके बाद नाउन प्लूरल होगा। तो MCQ इज एब्रीविएशन, तो इसका प्लूरल बनेगा अपोस्ट्रोफी S। आखिरी वाले जो इनिशियल है उसमें अपोस्ट्रोफी S लगाएंगे, तो दैट विल बी MCQ। और लाइकवाइज हमारे पास है दिस इज MNA। अगर इसका ये सिंगुलर है और इसका अगर प्लूरल बनाए तो ये हो जाएगा MNAs, यानी आखिर में अपोस्ट्रोफी S लगाएंगे। ओके, सो रिमेंबर इस नंबर का, इस एब्रीविएशन का प्लूरल क्या होगा? अपोस्ट्रोफी S। 1 MCQ 2 MCQs, 1 MNA 2 MNAs, 1 MPA 2 MPAs। लाइकवाइज नंबर का प्लूरल भी होगा अपोस्ट्रोफी S से। फॉर एग्जांपल ये है, ये 4 4 4, ये 4 कितने हैं? 3 है। 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3। मैंने बताया था जब 2 से ऊपर जो भी आएगा तो उसका बाद वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। वो प्लूरल में क्या होना चाहिए? प्लूरल में S होना चाहिए, ES IS VS अपोस्ट्रोफी S। रिमेंबर अपोस्ट्रोफी S इसके साथ प्लूरल बताता है, ये प्लूरल नहीं है, दिस इज नॉट प्लूरल। ये बॉयज बुक मींस बुक ऑफ बॉय, दिस इज नॉट प्लूरल। इसका प्लूरल जब करेंगे तो ये ऐसा होगा, बॉयज, तो ये है दिस इज नॉट प्लूरल, दिस इज शोइंग द मीनिंग ऑफ बॉयज अ बुक। लेकिन अगर एब्रीविएशन के साथ लगेगा तो प्लूरल, नंबर के साथ लगेगा तो प्लूरल, लेटर के साथ लगेगा तो भी प्लूरल। इनके अलावा जिसके साथ लगेगा तो ऑफ की मीनिंग देगा। देखो ये हमने प्रिंस के साथ लगाया अपोस्ट्रोफी S, तो ये दिस इज नॉट प्लूरल, दिस इज शोइंग मीनिंग ऑफ। लेकिन अगर मैं MCQs, दिस इज कॉल्ड प्लूरल क्योंकि ये एब्रीविएशन के साथ लगा। तो 3 क्या है? 3 4 है, तो 4 का प्लूरल होगा फोर्स, 3 4s। लाइकवाइज अगर हमारे पास है ये अटेंशन, देखो इसमें कितने T हैं? 1 2 3, तो 3 के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। उस प्लूरल में S ES IS VS या अपोस्ट्रोफी S आएगा, तो 3T नहीं होगा, ये होगा 3Ts। रिमेंबर लेटर का प्लूरल अपोस्ट्रोफी S, नंबर का प्लूरल अपोस्ट्रोफी S, एब्रीविएशन का प्लूरल अपोस्ट्रोफी S। दिस इज MCQ एब्रीविएशन है, लेकिन इसको मिला के पढ़ेंगे यूनिसेफ, वापडा, हैस्को, तो दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। ओके, लिसन नाउ, वी हैव गॉट MCQ, सो MCQ इज कॉल्ड सिंगुलर। तो A भी लग सकता है, N भी लग सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई लगेगा, लेकिन हम देखेंगे कि इसका शुरुआत वाला वावल, बाबा देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, दीज आर द वावल A E I O U, दीज आर कॉल्ड वावल लेटर्स। ये वावल लेटर्स है, and it is not necessary that always a vowel letter produces a vowel sound। ये लाजमी नहीं है कि हमेशा A वावल का साउंड दे, नो। E वावल का साउंड थे, नेवर। ये देखो ये हमारा लिखा हुआ है, ये यूरो नोट, ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, यूरो। बाबा देखें E तो आ गया, इज वावल लेटर, दिस इज कॉल्ड वावल लेटर। लेकिन इसका आवाज क्या है? इसका आवाज है यूरो। वावल का साउंड होना चाहिए अ साउंड, दिस इज कॉल्ड वावल साउंड, अ ए उ या आ, दिस इज कॉल्ड वावल साउंड। नाउ रिमेंबर बाबा, ये देखें यूरो नोट में ये जो ई वावल लेटर है, लेकिन इसका साउंड वावल का नहीं है, यानी ये साउंड इसका नहीं है। साउंड कौन सा दे रहा है? यू का। तो दिस इज द कॉन्सोनेंट साउंड, वावल लेटर बट प्रोड्यूसेस अ कॉन्सोनेंट साउंड। वावल लेटर तो है
लेकिन ये साउंड इसका वावल का नहीं है, साउंड इसका कॉन्सोनेंट का है, तो इसमें हम एन नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे अ यूरोनोट। लाइकवाइज बाबा देखिए एमसीक्यू, ये एम इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, वावल लेटर नहीं है, लेकिन हम अगर लिखेंगे इसको एम सी और क्यू, ये देखें बाबा एमसीक्यू का शुरुआत वाला आवाज जो है दिस इज वावल साउंड, दिस इज अ कॉन्सोनेंट लेटर बट प्रोड्यूसेस अ वावल साउंड, तो दिस इज, हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे एन एमसीक्यू, क्यू एन एमसीक्यू बिकॉज एम इज प्रोड्यूसिंग अ वावल साउंड। लाइकवाइज वी हैव गॉट एमएनए, एमएनए का शुरुआत वाला लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका आवाज एम का क्या बन रहा है, दिस इज एम एन एंड दिस इज ए, तो ये शुरुआत वाला आवाज किसका बन रहा है, और ये दिस इज सिंगुलर, इसका प्लूरल अगर बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी से बनाएंगे, तो एमएनए एमएनए, तो इसका आवाज शुरू वाला कौन सा आ रहा है, अलिफ का, तो दिस इज एन एमएनए। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सिंगुलर, क्यों सिंगुलर है, क्योंकि इसके आखिर में एस सी एस आई एस या अपस एस सी एस या एक्स सी एस नहीं आ रहा, तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ए या एन दोनों आ सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे सिंगुलर का शुरुआत वाला आवाज क्या है, बाबा इसका शुरुआत वाला आवाज है कॉन्सोनेंट, दिस इज यूनिवर्सिटी, वावल लेटर है बट इट प्रोड्यूसेस अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम इसमें एन लगाएंगे, आगे ए लगाएंगे, आई यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएंगे। ओके, लाइकवाइज वी हैव गॉट अम्ब्रेला, दिस इज सिंगुलर वावल लेटर एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस वावल साउंड, क्योंकि अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे, दिस इज अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला शुरुआत वाला आवाज अलिफ का है, तो हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला। ओके, नाउ सी इधर यू जो वावल लेटर है इसने वावल साउंड नहीं दिया, इसने कॉन्सोनेंट साउंड दिया, वावल लेटर है और वावल साउंड, तो लाजमी नहीं है कि हमेशा वावल लेटर ही वावल साउंड करें। देखो कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन आवाज इसका वावल वाला है, तो एन एमसीक्यू। हम देखेंगे कि सिंगुलर नाउन तो है लेकिन इसका शुरुआत वाला आवाज क्या बन रहा है, शुरुआत वाला आवाज कॉन्सोनेंट या वावल को नहीं देखेंगे, देखेंगे कि उसका शुरुआत वाला आवाज क्या आ रहा है। अगर उसका शुरुआत वाला आवाज वावल का आ जाए यानी अ का आ जाए तो एन लगेगा, लेकिन आवाज से साथ साथ देखना भी ये है, पहले आवाज को नहीं देखना है, पहले देखना है वो सिंगुलर है या नहीं है। पहले देखा हमने ये सिंगुलर है, अब इस सिंगुलर के बाद देखेंगे उसका शुरुआत वाला साउंड क्या बन रहा है। शुरुआत वाला साउंड अगर अ का है तो एन, और अगर अ का नहीं है तो हम उसमें अ लगाएंगे। लाइकवाइज हमारे पास है एल्बोज। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। बाबा हमने देखा कि ये सिंगुलर नहीं है, आवाज को नहीं देखेंगे, हालांकि इसका आवाज एल्बोज वावल साउंड आ गया, लेकिन हमें देखना ये है कि दिस इज नॉट सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। कैसे प्लूरल, एस आ गया, तो जब एस एस आई एस आ जाएगा तो प्लूरल बनेगा। प्लूरल में कभी भी ए या एन नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, इसमें ऑप्शन डी दैट इज नन। अगेन वी हैव गॉट नंबर 6 बुक्स। सबसे पहले हम क्या देखें, साउंड नहीं देखना, हमें देखना है कि इसका ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बुक्स एस आ गया, एस ई एस आई एस वी एस आ गया तो वो कहलाएगा प्लूरल नाउन, सो नाउन इज प्लूरल। जब ये नाउन प्लूरल होगा तो ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं, नन। ये प्लूरल के साथ ए एन नहीं आएगा, दा आएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्लूरल। और प्लूरल जब भी होगा, हम हालांकि इसका साउंड ब का यानी आवाज अलिफ का नहीं है, इसका ब का आ रहा है, लेकिन हम आवाज को पहले नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो नाउन प्लूरल है तो इसमें हम ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे।